Good morning, students. Welcome to the next lecture of subject basics of industrial engineering. In our previous lecture, we had learned, discussed few topics in chapter industrial legislation. The topics of our chapter are as follows. We had seen introduction, necessity of industrial act, principle of industrial legislation, and somewhat we had covered the Industrial Factory Act 1948. Today we will continue with the Industrial Factories Act 1948. Let us learn the approval, licensing and resolution of recall this thing of registration and of factories. So in our previous lecture, as we had discussed that what are the topics we need to keep in mind, or what are the points that should be keep in mind while taking approval and license of a factories. So these were few topics or points we need to remember, that it is necessary to take the permission of state government or of chief inspector for the site on which the factory is to be situated, or for the construction or extension of factory. The plans and specifications have been approved by the factory inspector. After that, the factory has to be registered and licensed, license obtained after paying the necessary fees. Now, this application for the permission should be sent to chief inspector. It should contain the name and address of occupier and the factory nature. Again, what are the manufacturing processes we are including, the nature of power to be used, and a name of the factory manager, number of workers required for that. So it should be completely mentioned in our file or application. After submitting application to state government of a chief or chief inspector, uh, if nothing is communicated within 3 months, then the permission is deemed to be granted. तो हमें समझ लेना है कि भाई परमिशन हमें मिल गई है, हमारा लेटर ऑफ अप्रूवल हमें वापस मिल जाएगा. बट इफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ और अ चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूजेस द प्रपोजल, हमारा प्रपोजल रिफ्यूज करता है, परमिशन नहीं देता है पर्टिकुलर साइट के लिए, then what we need to do, we need to appeal it to a central government in connection with 30 days from the date of refusal. जब हमारा रिफ्यूज़ल हुआ है उसके 30 डेज में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना होता है. ठीक है, अब इसी में हम इंक्लूड करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट में. पहला आता है हमारा इंस्पेक्शन स्टाफ के लिए. सो दिस एक्ट परमिट्स the state government to appoint a chief inspector and other inspectors who may enter the factory and may make examination of premises, plant, machineries and any documents related to factory. तो सबसे पहले हमारा इंस्पेक्शन स्टाफ आता है, वो पूरी जगह का मतलब मुआयना करता है, सब तरफ देखता है. उसके बाद वो सारी फैक्ट्री को जो है प्रीमाइस कैसा है, उसकी मशीनरीज कौन कौन सी मशीनरीज यूटिलाइज होने वाली है, उन सब का एग्जामिनेशन करता है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है. नेक्स्ट है सर्टिफाइंग सर्जन्स. सो द एक्ट also permits the state government to appoint a pre-qualified medical practitioners as a qualifying surgeons for the examination and certification of young workers, whether he is able to work or not, right? And the examination of the workers engaged in a dangerous occupation or processes. ठीक है, अब सर्टिफाइड सर्जन को भेजने का मेन रीज़न है कि भाई जो काम करने वाला वर्कर है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो समझने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एक सर्टिफाइंग सर्जन को भी भेज सकता है. ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट मेक्स डिटेल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग. तो डिटेल प्रोविजन क्या क्या देता है, तो हमें पहले हेल्थ सेफ्टी कैसी है, वेलफेयर के लिए कुछ किया है, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स,
एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स, लीव विद वेजेस, स्पेशल प्रोविजन जैसे डेंजरस ऑपरेशन, एक्सीडेंट एंड डिजीजेज, पेनल्टीज एंड अदर प्रोसीजर्स। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। ये सारे प्रोविजंस आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 में। तो लेट अस कवर इट। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ प्रोविजंस के बारे में। सो द फैक्ट्रीज एक्ट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस for maintaining the health of a worker and for reducing the possibilities of injuries। तो ये सारी जो क्वालिटी चेक्स है हेल्थ के लिए वो क्या क्या है, तो पहले क्लीनलीनेस। सो ऑल डर्ट एंड रिफ्यूज फ्रॉम फ्लोर्स, benches etc should be removed daily। The floors of the workroom should be washed at least every week using disinfectant। All inside walls, partitions, ceiling, sides and tops of the passages and staircases should be whitewashed or varnished at least once in every 14 months। If they are painted, they should be repainted at least once in a 5 years। ठीक है, ये क्या है कि हमारे हेल्थ प्रोविज़न में पहला है तो सफाई के बारे में है। क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एनवायरनमेंट वर्कर का क्लीन रहेगा तो उसे हेल्थ इश्यूज होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई जो बेंच वगैरह है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो प्लेस डेली साफ होना चाहिए। ठीक है, फिर एटलीस्ट वीक में एक बार डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके जो भी है फ्लोर को साफ करना चाहिए। ठीक है, एंड इफ द वॉल्स आर नॉट पेंटेड तो वो क्या है 14 महीने में एटलीस्ट 14 मंथ्स में उसको वर्निश्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर पेंटेड है तो 5 साल में वापस से उसको पेंट करना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड द कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर और वर्क। देखिए, ड्रेनेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। इफेक्टिव एंड suitable arrangement should be made for disposal of waste and effluents due to the manufacturing process। थर्ड है हमारा ventilation and temperature। So effective and suitable provisions should be made for securing and maintaining in every workroom adequate। अपन को क्या क्या ध्यान है, एडिक्वेट अमाउंट में वेंटिलेशन बाय फ्रेश एयर सर्कुलेशन होना चाहिए और suitable temperature to provide the condition of comfort and prevent injury to health of workers। देखिए, मूड स्विंग वगैरह है ना, चक्कर आना और वो सब हो सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा तो वर्कर को काम करने में कंफर्ट नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेल्थ प्रोविजंस के बाद आता है सेफ्टी प्रोविजंस कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज एनकेसिंग एंड फेंसिंग ऑफ मशीनरीज। ठीक है, सो एवरी प्राइम मूवर लाइक engine or motor, moving parts of machinery and every dangerous part of machinery should be fenced properly। उसमें हमेशा अच्छी तरह से फेंसिंग करके रखना चाहिए। वीक ऑन ओके नियर मशीनरी इन मोशन। सो वीक ऑन नियर मशीनरी तो एग्जामिनेशन ऑफ every part of machinery in motion should be carried out only by a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothes। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर नो वुमन और यंग वर्कर शुड बी परमिटेड टू क्लीन लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ मूविंग मशीनरीज वाइल में इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ इंजरी। तो उसका रिस्क रिड्यूस करने के लिए हमें क्या रखना चाहिए कि भाई वहाँ पे वुमेंस और यंग वर्कर को कम परमिशन, वहाँ सिर्फ हाईली जो स्किल्ड पर्सन है मेंटेनेंस करने के लिए उन्हीं का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। Employment of young persons on dangerous machines। So no young person should be allowed to work on a dangerous machines unless he is properly trained and carefully supervised। फिर हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स में क्या ध्यान रखना है, तो एवरी हॉइस्ट एंड लिफ्ट
should be of good mechanical construction, adequate strength, and must be protected by enclosures and fitted with gates. Every hoist and lift should be adequately maintained and periodically examined. Next है lifting machines, chains, ropes और lifting tackles के लिए क्या provisions हैं? तो lifting machines such as cranes, crab, winch, pulley blocks, etc. should be of good construction, adequate strength. They should be properly maintained and thoroughly examined at least once in a year by a competent person. फिर pressure plants के लिए क्या है? It should be ensured that the working pressure of a pressure vessel such as boiler does not exceed the safe limit. फिर floors, staircase और means of access of for different places के लिए क्या provision है? So all floors, steps, staircase, passages and gangways should be of sound construction and free from obstructions. Pits, sumps, opening of floors, etc. के लिए क्या है? So every pit, sumps, opening in a floor, fixed vessels, tanks, etc. should be securely covered or fenced. देखिए वहाँ पे भी अभी सारी चीज़ें लगा के रखनी होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सेसिव वेट्स। एक्सेसिव वेट्स के लिए क्या प्रोविजन है? तो नो पर्सन शुड बी आस्क्ड टू लिफ्ट, कैरी और मूव एनी लोड सो हैवी दैट इज लाइकली टू कॉज हिम इंजरी। देखिए ऐसी सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव लोड्स है ना, तो उनको लोगों से नहीं, उसके लिए अपन जो मशीनरीज लगा रखी है, क्रेन है वगैरह, उससे लिफ्ट करना चाहिए। ये सेफ्टी प्रोविजंस रखे जाते हैं चाहिए। फिर देखते हैं अपन वेलफेयर प्रोविजंस। वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए फैक्ट्री को? सो वॉशिंग फैसिलिटीज इन एवरी फैक्ट्री, सेपरेट एंड एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। देखिए हाथ धोने के लिए, और आप काम करके आते हैं तो खाने खाने जाते हैं, जब मतलब उनका लंच टाइम होता है, तो इस टाइम पे मतलब कम्प्लीटली अच्छी वॉशिंग फैसिलिटीज़ होगी तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांस कम रहते हैं। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, suitable sitting facility should be provided for all workers obliged to work in standing position so that they may rest if an opportunity occurs in course of their work without affecting the work। ठीक है, अगर पॉसिबल है कि उनका मतलब खड़े ही रह के नहीं, बैठ के भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, तो उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट कि कंटिन्यूस काम कर सकेगा, हेल्दी कंडीशन मिलेगी, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा और अच्छा प्रोडक्शन अपन ले पाएंगे। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, फर्स्ट एड बॉक्सेस इक्विप्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स एंड नॉट लेस देन वन in number for every 150 workers at one time must be provided and maintained and at accessible places। देखिए इतनी तो फैसिलिटी रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। 150 जितने वर्कर को आराम से फर्स्ट एड का प्रोविज़न हो सके, इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। कैंटीन के लिए क्या होना चाहिए? तो अ कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन एवरी फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 250 वर्कर्स। अगर 250 वर्कर्स से ज़्यादा है तो आपको आराम से कैंटीन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Shelters, rooms, restrooms and lunch rooms. Every factory which is more than 150 workers are ordinarily employed, adequate, suitable, clean, sufficiently lighted and ventilated rest and lunch rooms should be provided। देखिए इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी, वेलफेयर के लिए ये सब करना पड़ेगा। देखिए अगर हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो वर्कर अच्छी तरह से काम करेगा और आपका प्रोडक्शन भी सीधा सीधा अच्छी तरह से निकाल करेगा। Crutches. So crutches in factory wherein more than 50 workers are employed, suitable rooms or crutches must be provided for the use of the children under the age of 6 years of such women। तो ये 6 साल से मतलब जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं काम करने आती हैं, तो उनके बच्चों के लिए हमें छोटे छोटे रूम होने चाहिए सो दैट वो आराम से वहाँ रख के काम कर सकें। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स। Working hours, so for adults, no adult should be required to or allowed to work in a factory for more than 48 hours in a week or 9 hours in a day.
मोर ओवर नो वर्कर शुड बी वर्क फॉर मोर देन 5 hours बिफोर ही हैड एन इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर। ठीक है, थोरोली 9 घंटे काम नहीं करना है। वीक में 48 घंटे से ज़्यादा एडल्ट को देना नहीं चाहिए। एडल्ट हमें पता है कौन है, ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी थी। और फॉर एवरी 5 hours हमें एक हाफ एन आवर का लंच ब्रेक देना चाहिए वहाँ पर। फिर हॉलीडेज के लिए क्या प्रोविज़न है? सो नो एडल्ट शुड वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर ऑन अ फर्स्ट डे संडे of the week unless the factory manager subtitles Sunday by a holiday 1 or 3 days immediately before or after the Sunday. If he is required to work on Sunday, he shall be entitled to compensatory holiday or to the same. देखिए, एडल्ट अगर वर्क कर रहा है तो उसके लिए संडे एटलीस्ट एक फ्री डे मिलना चाहिए उसको। अगर संडे नहीं है तो उसके इमीडिएटली जो फर्स्ट और 3 days आते हैं उसमें से मिल जाना चाहिए एक हॉलीडे। एक्स्ट्रा वेजेस ऑफ फॉर ओवर टाइम। सो ओवर टाइम के लिए भी एक्स्ट्रा वेज का कि भाई अगर एडल्ट वर्क कर रहा है 48 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके लिए सेम अमाउंट में कंपनसेशन ओवर टाइम मिलना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन और डबल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक फैक्ट्री में काम करने के बाद वर्कर अगर ऐसा सोचता है दूसरी फैक्ट्री में और रेस्ट किए बिना काम करेगा तो वहाँ पे उसको इंजरी होने का चांस है। तो ऐसा डबल एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। सो देखिए, क्लीन करने के मशीनरीज, मूविंग मशीनरीज हैं, ठीक है, जो मोशन में मशीनरीज हैं उनके लिए क्लीन करना है हो, लुब्रिकेट करना हो तो ऐसे कंपनी में महिलाओं को यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक स्किल मैन वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो वुमेंस के लिए फैक्ट्री आवर 6 AM to 7 PM ही होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।